রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার। নির্বাচন আসন্ন। এবারের ভোট শুধু সরকার নির্ধারণের নয়, ভবিষ্যৎ বদলের। বাংলা কি নতুন দিশা পাবে, নাকি সেই একই গল্প? একটা ভোট, আর সেটাই স্থির করবে আপনার পরবর্তী প্রজন্মের, আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ। সিদ্ধান্ত নিতে হবে, হাতে সময় কম। আর যারা এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, তাদের উদ্দেশ্যে এক্সপ্রেস নিউজের নির্বাচন ভিত্তিক এই বিশেষ অনুষ্ঠান বাংলার ভোট যুদ্ধ। আপনার সঙ্গে রয়েছে আমি ভাস্কর। আমরা এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক দিন বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের উপস্থিত করছি, তাদের কাছে মানুষের প্রশ্ন রাখছি, সমস্যা রাখছি, তার সমাধান জানার চেষ্টা করছি। তারা কি প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের দরবারে হাজির হচ্ছেন তা জানার চেষ্টা করছি। আজ বাংলার ভোট যুদ্ধে আমাদের অতিথি রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ। পেশায় শিক্ষক তিনি। তাই স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ আপনাদের। এবং একই সঙ্গে এটাও জানাবো, আমাদের এই আলাপচারিতা বাংলায় হবে, তবু বাংলার পাশাপাশি হিন্দি উর্দুর আশ্রয় নিতে হতে পারে। আপনি পেশায় শিক্ষক। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইছি, এই মুহূর্তে আপনার বিধানসভা কেন্দ্র ঠিক কোন সমস্যায় পড়ে আছে, কোন সমস্যার সম্মুখীন, এবং এর আগে শাসক দলের যে প্রতিনিধি ছিলেন তার প্রতিশ্রুতি মতো কতখানি কাজ হয়েছে, প্রথমত একজন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তারপর আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আপনার মত আমাদের দর্শকদের সামনে রাখুন স্যার। अपनी बात रखने से पहले मैं दो शेर कहना चाहता हूँ। प्लीज इरशाद। जो ज़िंदगी में हर किसी को इस बात को समझना चाहिए कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर तुम ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। क्या बात। और जो अभी एक माहौल बना हुआ है कि टीएमसी बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, तो जो लोग आइडियोलॉजी का पॉलिटिक्स करते हैं या ज़िंदगी जीते हैं एक पॉलिसी के ऊपर, तो उनके लिए एक शेर है, या बीजेपी या टीएमसी के लिए एक शेर है, अपने कर्मियों के लिए भी है, कि ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। কার কত বড় যে সংগঠন আছে, কত লোক আছে, সেই সব কিছুই না। আমাদের কাছে যে আছে কমিটেড অ্যান্ড ডেডিকেটেড। আপনি বুঝতে পারবেন যে আজ 50 বছর কংগ্রেস শাসনে নেই পশ্চিমবঙ্গতে, তাও যারা কংগ্রেস রাজনীতি করছে, তার মানে তারা কতটা কমিটেড আছে, কতটা ডেডিকেটেড আছে, তার কতটা সুবিধাবাদের যে অংশটা ওদের মধ্যে নেই, সেটা একদম ফিয়ারলেস। আর কোনো প্রফিটের উদ্দেশ্যে তারা পলিটিক্স করছে না, দেশের জন্য করছে, পার্টির জন্য করছে। आपने क्या शुरू कर दिया सर। T20 का जमाना है और पहले ही गेंद पे छक्का। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हैं, धीरे धीरे वो सवाल आते रहेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे जो था कि अभी आपके जो विधानसभा क्षेत्र है जो कि रानीगंज, वहाँ के जो आदमी हैं, उन लोगों का मसला, प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम क्या है, जिनका हल होना चाहिए। গত 5 বছর ধরে যেখানে শাসক দল, তাদের প্রতিনিধি বিধায়ক মানুষের
দৈনন্দিন দুর্দশা কষ্ট দুঃখ দূর করবার ক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন তারা পালন করতে পেরেছেন কিনা, যদি না পেরে থাকেন আপনারা কোন কোন ইস্যুগুলোকে সামনে রেখে নির্বাচনের আসরে অবতীর্ণ? ফৈয়াজ আহমেদ স্যার। सबसे पहले मैं हमारे जो विधायक थे इससे पहले वो तापस बनर्जी, वो हमारे सीनियर भी हैं और लीडर भी रहे हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं यहाँ से। अच्छा। वो कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, 2010 में वो टीएमसी ज्वाइन किए और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पॉलिटिक्स किया है। उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे और अंडाल में ही उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रणब मुखर्जी जी आए थे, हम लोग उसका ऑर्गेनाइज किए थे प्रोग्राम को, और फिर तापस बनर्जी 2010 में चले गए। ये उनका अपना पर्सनल मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन तापसदा से क्षमा प्रार्थी रहूँगा इस बात पर कि आपने जो प्रतिश्रुति दिया था वो पूरा इसलिए नहीं कर पाए कि आप जनता से वोट लेते हैं लेकिन फिर जा कर के टोटली जो है पार्टी स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर जाते हैं। अपनी बात को सिर्फ रानीगंज तक सीमित उन्होंने रहा, अपने आप को ऑफिस भी बनाया और अंडाल में वो सिर्फ या तो दुर्गा पूजा का उद्बोधन करने आए या किसी का शादी ब्याह वगैरह में आए। बस अंडाल के जनता को मिलने का उन्होंने कभी मौका नहीं दिया कि अंडाल की जनता कहीं पर वो ऐसी जगह बैठे जो सार्वजनिक जगह पर, वो पार्टी ऑफिस में आके बैठेंगे तो हर जनता नहीं जाएगी। वो कभी कभार आकर के पार्टी ऑफिस में बैठे तो आम जनता उस सब जगह पर इसलिए नहीं जाती है कि बहुत से लोकल लीडरशिप ऐसे होते हैं जिनसे जनता डरती भी है और घबराती भी है, तो जनता वहाँ नहीं गई, तो जनसंपर्क इनका टूटा इससे। और देखिए फिर तापसदा को जो है सीट फिर ट्रांसफर भी कर देना पड़ा यहाँ से, कुछ तो भय जरूर रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले रूलिंग गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनसंपर्क में थे, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड यस एंड देयर हैज बीन चेंज अ लॉट। तो जनता का जो प्रॉब्लम था उसका हल नहीं निकला। कौन कौन सा प्रॉब्लम था, क्या इश्यूज हैं अभी जिनका मसला हल होना चाहिए? देखिए हम लोग तो टीएमसी के साथ में मिलकर भी हम लोग पॉलिटिक्स किया है। जो तो राजनीति चला पश्चिम बंगाल में बहुत दिन तक, हालांकि ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़ करके ही टीएमसी बनाई, सबको पता है। हाँ, लेकिन सोनिया गांधी उसके बावजूद भी उनको फुल हैंड्स दी। और उसके बाद हम लोग जब साथ में राजनीति किए तो लोकल लीडर्स के साथ हम लोग का बहुत अच्छा संपर्क है, दोस्ताना माहौल में। हम लोग चूँकि टीचर भी है तो उस तरह का एग्रेसिव पॉलिटिक्स में हम लोग है नहीं। तापसदा एज ए कैंडिडेट यहाँ पर आए, लेकिन उससे पहले सोहराब अली आए, फिर उनका वाइफ नरगिस बेगम को दिया गया। तो ये जो कैंडिडेट का बार बार चेंज होना, और माफ़ करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा आप अपने सवाल पे थोड़ा दोहरा देते तो मैं टू द पॉइंट बात कर पाता। मैं आप जिस बात को छेड़े अभी जी जी कि এই বারবার প্রার্থী বদলে দেওয়া নিশ্চিতভাবে একটা কিছু তো ইঙ্গিত করে, পার্টিও সেখানে সন্তুষ্ট নয় সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে, তবেই তো প্রার্থীটা চেঞ্জ হচ্ছে, অন্যথায় তো এমনটা হতো না। আমার আপনার কাছে যেটা প্রশ্ন ছিল যে রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের যারা ভোটার তাদের মুখ্য সমস্যাগুলো কি? আমি কিছুটা জানি, আমি নিশ্চয়ই সেটা আলোচনায় আনবো, কিন্তু আপনার মুখ থেকে প্রথম শুনতে চাইছি সমস্যাগুলো ঠিক কি। দেখুন কোলবেল্ট এরিয়ার নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকে, কর্মসংস্থানজনিত ইস্যু রয়েছে, দূষণজনিত সমস্যা রয়েছে, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, সমস্যা বিবিধ রয়েছে। আপনার মুখ থেকেই শুনি, কারণ আপনি তো ওই এলাকা মানুষজনের কাছে যাচ্ছেন, তাদের সাথে কথা বলছেন, তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বোঝার চেষ্টা করবেন। তাই আমি যতটা না ভালো বলতে পারবো তার থেকে অনেক ভালো আপনি বলতে পারবেন যে ওখানকার মানুষজনের ঠিক সমস্যাটা কি রয়েছে, কোন কোন সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার, যা আগের জনপ্রতিনিধি পূরণ করতে পারেননি, আপনারা পূরণ করবার ইচ্ছা রাখেন, চেষ্টা করবেন, प्रतिश्रुति देवें। बोलूं सर। आपके बात में दो बात में पहले जोड़ करके फिर आपका बात का जवाब प्लीज देता हूं। बोलिए सर। जब हम लोग जोड़ पॉलिटिक्स करते थे या कांग्रेस भी जब करते थे तो हम लोग दीवार पर लिखते थे, अच्छी तरह से याद है कि कैडर राज को खत्म करके जनता का जो है डेमोक्रेटिक राज लाना है। इसमें पूरी तरह विफल रही है तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, अब जो आप बोले सबसे बड़ा जो
समस्या है इलाके का। हमारा जो क्षेत्र है इसका सबसे बड़ा समस्या है पॉल्यूशन। आज हम लोग उस इलाके के जो बासिंदा है, बूढ़ा बुजुर्ग जवान सब, एक एक सांस के लिए हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये जो चिमनी से जो धुआं निकलता है और उसमें जो पार्टिकल्स है, उसमें जो लगाना है फिल्टर, वो प्रॉपरली उसको यूज नहीं किया जा रहा है। बहुत से कर्मचारी हमारे इलाके के काम करते हैं, आप सुनिएगा तो हंसी आएगा कि जब पॉल्यूशन कंट्रोल का वहाँ इंक्वायरी आता है तो नया बालू ला, ताजा बालू ला करके ऊपर से छीड़ दिया जाता है ताकि दिखाई ना दे। उसको दिखाई देता है, जब वो पैर रख के आते हैं ना तो उस दिखाई देता है, लेकिन कुछ भी उसको जो लोग जो है नजरअंदाज करके चल जाते हैं। इसलिए कि इसमें पूरा का पूरा मिली भगत है प्रशासन का, पॉल्यूशन कंट्रोल का, और जो हो सकता है उनको उसे निर्देश भी हो और लीडरशिप का साथ सबका मिली भगत है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट हो या और भी कोई समस्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम जिंदा जब रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तब ना हम हर चीज को एकदम से आगे बढ़ेंगे। पॉल्यूशन को एकदम नजरअंदाज किया गया है, नेग्लेक्टेड। अंडाल जो क्षेत्र है, ये पूरा रानीगंज, इसका चारों तरफ सर्किल में दुर्लभपुर इधर, दुर्गापुर, अंडाल, आपका मंगलपुर, फिर उधर जाकर के अभी आपका बल्लभपुर का साइड में पूरा एक सर्कुलर जो है कारखाना का जो है एक बन गया, और हम लोग एक टापू में आ गए, आइलैंड में। तो चारों तरफ हवा जिस दिशा का भी रहेगा, पॉल्यूशन हमारे तरफ आएगा ही, झेल रहे हैं आपको। और एक एक आदमी जो है लंग्स का प्रॉब्लम में, सांस का प्रॉब्लम में चला जा रहा है, और भविष्य बहुत खराब है। AQI के ऊपर में कोई जो है सबसे बुनियादी जिंदगी सबसे बड़ा चीज है। बाकी जब हम जिंदा रहेगा तो हम तालीम हासिल करेगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सही है, हम जो है आगे बढ़ेंगे, कैरियर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी है। तो सबसे पहला स्ट्रगल वहां पर जो समस्या है जिंदगी का है। দেখুন, যে কোনো কাজ করবার আগে নিজেকে সুস্থ রাখাটা জরুরি। আর স্বাস্থ্য যদি সঙ্গে না থাকে, বাকি কথা খুব একটা গুরুত্ব রাখে না। যেটা স্যার বলছেন, মানুষকে আগে সুস্থ থাকতে হবে। আর এক্ষেত্রে প্রদূষণ বা দূষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দূষিত আবহাওয়ায় সুস্থ মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। স্যার, एक कभी समय था कभी भी कि दिल्ली प्रदूषण तालिका में सबसे पहले अव्वल नंबर पर आता था। अभी दुर्गापुर का स्थान उससे ऊपर है। ये कितना सोचने वाला बात है, और क्यों ये कंपनियां नहीं सोचती। आप जो बताएं कि फिल्टर के बाद, सर सिर्फ तो फिल्टर के बात नहीं है सर, वो जो चिमनी होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड हाइट रहना चाहिए, उसके बाद आता है फिल्टर का बात। मुझे जहाँ तक समझ है, जानकारी है कि ये है ही नहीं, तभी ये मसला इतना तूल पकड़ रहा है। वहाँ का लोगों को ये समझना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा बनना चाहिए इलेक्शन का। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, और यहाँ आपका बेल्ट में, आपका एरिया में ये कितना इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण तो होना ही चाहिए नंबर 1, लेकिन इसके बाद आता है नौकरी का प्रावधान, इसके बाद आता है शिक्षा का बात। आप एक शिक्षक हैं, आपको भली भांति पता होगा। उसका बाद आता है हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ये सब स्वास्थ्य संबंधित विषय। ये कितना प्रॉब्लम रानीगंज विधानसभा केंद्र में है, ये बताने का कृपा करें प्लीज। देखिए, दुर्गापुर का जो मामला है, दुर्गापुर तो पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा देश का एक गर्व। बिल्कुल, पूरे इंडिया में 2 प्लांट सिटी बनाया गया, जिसमें एक दुर्गापुर, एक चंडीगढ़। और सिर्फ प्लांट सिटी नहीं बनाया गया, दुर्गापुर को इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया गया। डॉक्टर BC राय से लेकर के सिद्धार्थ शंकर राय के अमल तक दुर्गापुर और इसके आसपास में इतने स्टैंडर्ड कारखाने बनाए गए, और पूरा सिटी को जिस तरह से सजाया गया। जब जो लोग पुराने हैं या जो लोग इतिहास को समझते हैं, आज वो सिचुएशन कहाँ गया है। कल हमारे एक लीडर तरुण राय कह रहे थे कि दुर्गापुर का पत्ता पत्ता जो है दुर्गापुर की दुर्दिशा का जो है कहानी बयान कर रहा है। बिल्कुल, तो आज दुर्गापुर ऐसा नहीं था। हम लोग तो आज यही 54 ईयर्स हमारा उम्र है, बचपन से हम लोग, हमारा सब डिवीजन यही है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि किस तरह से दुर्गापुर को बर्बाद किया जा रहा है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है,
ये बंद हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट का आप बात किए, उससे पहले आप एक बात बोले थे कि मजदूरों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कैसा हो रहा है कि जो आम मजदूर है उसका 15,000 रुपया अगर वेतन आता है, उसको साइन कराया जाता है, उसको चूं करके उसको ऑडिट कराना है, लेकिन उसको हाथ में 10,000 रुपया दिया जाता है। जो स्किल्ड है, फीटर टाइप के लोग जो हैं, 25,000 30,000 उसका वेतन रजिस्टर में है, साइन कराया जाता है, लेकिन उसको 15,000 रुपये वेतन जाता है। तो वो सिर्फ अकेले कर पा रहा है क्या? उसके साथ में जो यहाँ के शासक दल के जो लीडर हैं या उनके जो यूनियन लीडर, अक्सर देखिए जो इस पार्टी का माने यहाँ पर हुकूमत रहता है, गवर्नमेंट रहता है, उसका यूनियन को ज़्यादा बोलबाला होता है। तो ये हमेशा से हाँ, ही तो ये होता आ रहा है। सबसे बड़ा जो दूसरा आता है, हम 3 बात बोलते हैं, हमारा एजेंडा है कम्युनलाइजेशन, जो सांप्रदायिकता है, उसके बाद करप्शन, और तीसरा है पोल्यूशन। कल भी मैंने ये बात कहा, ये तीनों से लड़ना है हम लोगों को। और एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, स्टैंडर्ड जो शिक्षा का घटा जा रहा है, पश्चिम बंगाल समेत पूरा देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 5-6 हज़ार ऑलरेडी सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। प्राइमरी स्कूल का हालत कैसे है? हाँ, प्राइमरी स्कूल्स का हालत, प्रोग्राम्स आ रहे हैं लेकिन बच्चा उससे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? कि बच्चा को जो है, जो चीज आज के दौर में आप जो पुराने ढंग से स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, नए नए तरीके याद होते हैं, इन सर्विस मामला, प्राइवेट स्कूल, मुझे जो अपना जो बात है, बदलते समय को हाँ, ख्याल चलना में पड़ेगा, रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट स्कूल का बढ़ जाना रेशियो में और इसको घटते जाना, तो एजुकेशन तो वहां भी दिया जा रहा है, यहाँ भी दिया जा रहा है, लेकिन उसको मौका दिया जा रहा है फलने फूलने का। जैसे अब एक पौधा लगाए और 2 पौधा है, किसी को आप जो है छांव में रख दिए, पानी भी नहीं दिए, धूप भी नहीं मिला, खाद मिल रहा है, पानी हाँ, मिल और रहा है, उसको जो है लाइट खाद पानी हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो फल फूल रहा है। इसीलिए इतना अंतर हो रहा है और ये गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। स्कूल में रोल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया है। बंद तो जो हुआ, रोल स्ट्रेंथ जो है ग्रेजुअली कम होते होते ही तो स्कूल बंद होता है। तो जो ड्रॉप आउट है उस पे देखना, स्कूल के शिक्षा का मान को बढ़ाना और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। जमीन का भी समस्या है, तो जमीन आज जो रेट है, अगर आप सरकार का पॉलिसी है कि जमीन आप जो है ये देखिए वो देखिए, तो वो रेट में जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। सरकार के पास लैंड हब है, तो सरकार को लैंड जो वेस्टेड लैंड्स होता है, वो जो बंदर बांट करते हैं अपने अपने लोगों में, उससे बचना पड़ेगा। और आम जो है, आम मुफाद इसको उर्दू में बोलता है कि जनरल सुविधा के लिए, सबको जिससे सुविधा मिले उस काम में लगाना पड़ेगा। वो जो मेरा आदमी है उसको हम अलॉट कर दिया 2 शतक, उसको 2 शतक, नेपोटिज्म का बात कर रहे हैं आप, नेपोटिज्म है, पॉलिटिकल नेपोटिज्म है, जो भी समझ लीजिए यही है। দেখুন রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কোল বেল্ট এরিয়া এবং সেখানকার দূষণ যে মাত্রা ছাড়া, আমাদের শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের দূষণ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, বলতে বলতে এই জায়গাটাকেও কিন্তু অবহেলা করতে পারি না। সেখানে দূষণের মাত্রাটা নিশ্চিতভাবে আরও বেশি। আশেপাশে রয়েছে স্পঞ্জ আয়রন কারখানা এবং সেখান থেকে নির্গত ধোঁয়ার পাশাপাশি কলিয়ারি এলাকার দূষণ কেমন হয় আপনাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর সেই রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যা, অসুখ, এই ধরনের রোগ, আমি ওখানকার কিছু চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলেছি, জানতে পেরেছি যেটা, যে এই শ্বাসের সমস্যাজনিত রোগে ওখানকার মানুষ বেশি ভোগেন। আর ফৈয়াজ আহমেদ স্যারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেটা জানতে পারলাম যে দেখুন, সবাই মিলেমিশে একটা এমন দুষ্টচক্র চলছে যাতে এই দূষণটাকে রোধ করবার জন্য কোনো আন্তরিক প্রয়াস নজরে পড়ছে না। सर, अगर मिली भगत सबका चल रहा है, ये तो एक सिस्टम है, मान रहे हैं ना, ये सिस्टम है। तो अगर आप मान लीजिए जीत के आते हैं तो आपको तो सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर नहीं आप सिस्टम का पार्ट बनते हो, क्या असर हो सकता है ये भी मालूम है ना, क्या हो सकता है सर? देखिए, यही तो फर्क आ जाता है यहाँ पर कि बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम तो अभी खैर है ही नहीं कहीं पर, और आप कहाँ पे हो सर? हाँ, सुन लीजिए सर, आप जब बताते हो कि ये तो कहीं पर नहीं है, हाँ, आप कहाँ पर हो? हम हैं अभी
अब हम देखिए, अगर आप बात कीजिएगा कि कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे मेंबर्स हैं, मैं तो अभी उसी का बात करूंगा सर। टीएमसी से बहुत ज़्यादा हम लोग हैं, एमपीज हमारे 100 हैं। वो छोड़िए सर, देश का बात अभी छोड़िए, हाँ, हम स्टेट लोग की बात करें। करते हैं स्टेट का। आप कहाँ कहाँ है सर? तो किसी को अगर छोटा दिखाना है तो खुद का तरफ भी देखना बिल्कुल, पड़ेगा हाँ। सर। प्लीज बोलिए। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा बात माने बड़ा है, पॉलिसी की बात है। रीजनल पॉलिटिक्स करते करते, बोलिए। रीजनल पॉलिटिक्स एक होता है और एक होता है नेशनल पॉलिटिक्स, तो दूसरा बात। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, ठीक है, सही है। तो जब कांग्रेस गठबंधन में गई रीजनल पार्टीज के साथ में मुकाबला करने के लिए एनडीए का 15 साल समझ लीजिए जो चल रहा है, थर्ड टर्म चल रहा है, लेकिन देखा गया कि जो रीजनल पार्टीज है वो अपने रीजनल स्वार्थ जो है उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, या उनका अपना पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है और वो भी और जो हाँ उसको लेकर के चले आते हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये लोग दोनों यूपीए का कन्वेनर रह चुके हैं। अब सोचिए कन्वेनर कितना बड़ा बात होता है, आज पाला बदल के चले गए। सर छोड़िए वो बात, छोड़िए। देखिए तो कांग्रेस जो है, तो बता रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, नहीं आप जो बताना चाहते हैं समझ पा रहा हूं सर। अकेला जो लड़ने का जो है सिद्धांत लिया, हाँ, तो ये बहुत दूर अंदेशी का बात है ये, फार साइटेड, कि जब तक हम अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी जो दिखाई है खेल मनी पावर का और एजेंसी का मिस यूज का, उस खेल से अगर निकलना है तो उससे एक नीडर जो है और पूरा डेडिकेटेड आदमी जो हमारा नेता अभी राहुल गांधी ने जो कर दिखाया है और जो कर रहे हैं कि डरना नहीं है, उनका डायलॉग है, बात है कि डरो मत। एक अकेला इस सफर में, ठीक है, ये बात तो हालिखा बात नहीं है, ये तो बहुत पहले भी ऐसा ही बात चलता रहता था कि कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो अपने बलबूते पर पावर में आएगा, ठीक है। आगे का जो दिन है, आपको ये लगता है कि एक अकेला कोई भी पार्टी फुल पावर में आ सकता है? सेंटर में आ सकता है। छोड़िए इस बात, सुनिए एक मिनट, सिर्फ एक थोड़ा सा बात के लिए मान लेते हैं कि सर आ सकता है, मैं ठीक है। राहुल गांधी का जो इमेज है, सुनिए, राहुल गांधी का जो इमेज अब तैयार हो रहा है, उन्होंने गांधी जी के बाद पूरे देश में सिर्फ घूमने के लिए नहीं गए, जिस तरह मोदी जी हमारे जाते हैं इन्विटेशन के लिए, लोगों को समझने गए, देश को समझने के लिए गए। मान रहे हैं सर, वो लोगों को बात को, उनका पीढ़ा समझने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को समझने के जो गांधी जी ने दिया, wrong in it, sir, क्या है, and it's very good act, what I like to say। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये लोकल मुद्दे पर होगा और उसी के चलते बात आगे बढ़ेगा सर। यहाँ का लोगों का जो परेशानी है, जो दुखदारी है, जो सिचुएशन है, उन्हीं पे बात होगा सर। नेशनल इश्यूज का अगर बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप नेशनलिस्ट पार्टी हैं, आपका नेशनल एजेंडा रहेंगे और लोकल एजेंडा ये इलेक्शन के चलते रहना चाहिए। बिल्कुल रहेगा। दोनों में कोई विरोध आ सकता है, अगर आता है तो ये मसला कैसे हल होगा? विरोध कभी नहीं आएगा। नेशनल एजेंडा जो है, एक देश से, हमारा जो प्रदेश है ये वेस्ट बंगाल, देश का बाहर नहीं है। आपकी बॉडी है, हाँ। हम आंख का ट्रीटमेंट करा रहे हैं अगर, तो क्या वो आंख वो आपके बॉडी का पार्ट्स नहीं है? तो बॉडी के किसी भी पार्ट्स हो, वो मेरा अपना है, तो हम उसके इंटरेस्ट को जरूर देखेंगे, लेकिन देश सबसे ऊंचा, देश बचेगा तो ये स्टेट भी बचेगा। और स्टेट का एजेंडा तो हमारा एकदम क्लियर कट है कि हम यहाँ से करप्शन। सर अगर मैं कहूँ कि स्टेट बचेगा तो देश बचेगा, ये क्या गलत कहना होगा मेरा? हाँ, ये भी ठीक है, तो दो तरफा है ये स्टेट बात। तो सर दोनों पे डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट है। तो आप वो जो बात कर रहे हैं उससे मैं थोड़ा बहुत हटना चाहूँगा। अच्छा। और पूछना चाहूँगा आपसे कि देखिए, अभी जो इलेक्शन है, आप अगले 1 महीने के अंदर सब कुछ जी, तो स्टेट को बचा के देश को बचाने हम लोग जा रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, सही है। तो आपके वहाँ से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी है एडवोकेट पार्थ घोष, जी, टीएमसी के है कालू वरुण मंडल, सीपीआईएम के हैं नारायण बावरी, एम आई राइट? हाँ, ठीक। और आप हैं सर इंडियन नेशनल कांग्रेस से फैयाज अहमद सर। इन चारों में पकड़ा किसका सबसे ज्यादा भारी है?
किन में लड़ाई होगा टक्कर का, थोड़ा बहुत बताइए। जी जी, देखिए जितने भी आपने कैंडिडेट का नाम लिया, सभी का ऑलमोस्ट सभी सब का नाम मेरे लिए लिया। सम्मानीय है। हाँ। हम सब का पूरा जो है अपना दिल से सब इज्जत करते हैं। राजनीतिक लड़ाई एक अपनी जगह हो सकती है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। अब रहा जो आप लड़ाई की बात करें, ऐसा एक देखिए हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो सिनेरियो पॉलिटिकल क्रिएट किया गया, ये है नहीं, ये क्रिएट सिर्फ किया नहीं जा रहा, प्रोजेक्ट भी किया जा रहा। मतलब कि बाइनरी नहीं है, बाइनरी को किया, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है ज्यादा करके, जो कि सच नहीं जो है। सच नहीं होगा इस बार। तो सच क्या है सर? सच ये है कि हम लोग देर से जरूर आए हैं। हाँ। थोड़ा सा देर हुआ हमारा, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे थे। आज 6 महीना से हमारा BLA 1 में मैं था इस बेल्ट में, रानीगंज विधानसभा में। अच्छा। तो 6 महीना से मैं तो खुद बूथ टू बूथ अपना BLA 2 को जो अपॉइंट कर रहा था। हाँ। हर जगह हेल्प डेस्क लगा रहे थे। हाँ। जनता से मिल रहे थे, उसके फॉर्म फिलअप कर रहे थे, समस्या का समाधान कर रहे थे। अच्छा। तो हमारा जो ग्राउंड वर्क है, हाँ। वो पहले से किया हुआ है। देखिए सर, और ये जो बात अगर आप कह रहे हैं ये सच है, तो मानना पड़ेगा कि आपका काम बहुत उम्दा तरीका से जमीन शुरू से हुआ चल है। रहा है। हाँ। क्योंकि जब BLO घर घर पर जा रहे थे, जी, जी। उन समय BLA अगर उनके साथ रहते हैं, मतलब पार्टी का प्रतिनिधि अगर हाँ, रहते BLA, हैं, हाँ, जी। तो वोटर को थोड़ा बहुत स्वस्ति मिलता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा है, लोकल का आदमी है ना। जी जी। अगर नहीं रहता तो लोगों में ये भरोसा डालना काफी कठिनाई में आता कि पार्टी अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि आप जब लेफ्ट के बात कर रहे हैं, यो तो शून्य है। बीजेपी कहते हैं, TMC कहते हैं कि शून्य से महाशून्य पे हो जाएंगे। ठीक है, उनके बाद उनके जगह पर रहने दीजिए। कांग्रेस को बताया जा रहा है कि ये साइन बोर्ड है, अभी ये डाक टिकट बन चुका है। लेकिन जब BLO घर घर में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उस समय अगर पार्टी के एजेंट रहते हैं, तो मेरा मानना है कि वोटर के मन में थोड़ा बहुत तो विश्वास उस पार्टी के ऊपर आता है। ज्यादातर में देखा गया ये है सर, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं आपको। मुझे पता है कि जितने सारे BLO गए उनके साथ TMC के एजेंट तो रहे हैं, बाकी कई क्षेत्रों पे ज्यादातर देखा गया है दूसरा कोई है ही नहीं। अगर है तो गिना चुना जगह पर। क्या मैं सही हूं सर? हाँ, आप पार्शियली करेक्ट हैं। अच्छा, और ज्यादातर सर हाँ, करेक्ट ज्यादातर रहेगा। हाँ। पश्चिम बंगाल में हाँ। हम कभी कभी भाषण में मजाक में बोलते भी हैं। हाँ। ये कोई मैंने बुरे मानने वाली बात नहीं है, नहीं, मैंने प्लीज मजाक मैंने जनता के लिए मैं हाँ, कह रहा बोलिए हूँ ना, कि बोलिए, बुरा प्लीज। मत मानिएगा। हाँ बुरा प्लीज मत- बोलिए बोलिए। कि हम लोग पहले होता था कि राजनीतिक तौर पर सबसे सचेतन जो है, सबसे सचेतन जो हम लोग ये है पश्चिम बंगाल के लोग हैं। बिल्कुल है, तो हम मजाक में बोलते हैं ये बात को, सीरियसली नहीं लेने का है कि इतना सचेतन है, इतना सचेत है कि जब बाम फुट के टाइम में जो था ना 90% आदमी जो है लेफ्ट था। हाँ। और TMC के टाइम में 90% जो आदमी जो है TMC हो गया। तो इतना जो है सचेत आदमी, तो हमको तो इसमें कुछ अलग किस्म का जो है सोचने जो वाला लग रहा बात है कि ऐसा कि कैसे हो सकता फैयाज है? अहमद सर जो करे कि দেখুন আমরা রাজনীতি সচেতন, বাংলা যা আজ ভাবে দেশ আগামী কাল ভাবে, এই প্রবাদ আমরা শুনে এসেছি এবং সেই প্রবাদটার নিরিখেই কিন্তু ফৈয়াজ আহমেদ স্যার যে কথাটা বলতে চাইছেন যে কোথায় আমাদের সচেতনতা, যেখানে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করে আমরা একটা रूलिंग সিদ্ধান্ত पार्टी নিয়ে के चले নিচ্ছি। जाए हमरा। यही बोल रहे हैं ना सर? रूलिंग पार्टी की तरफ चले जाते हैं। दिस इज नॉट माय कमेंट। कमेंट नहीं, माने ये नहीं सही नहीं नहीं सच ठीक है, है। नहीं नहीं सच या झूठ जी जी ये तो जनता जनार्दन खुद सोच सकते जी हैं हाँ, वो करेंगे। और डिसीजन उनका ही लेना है। বিষয়টা इसमें হচ্ছে एक যে मिनट এবারে अगर disturb करता हूं নির্বাচন। मैं अपनी बात को जो है ताकत देने के लिए प्लीज बोलिए। कि हर दौर में होती रही ताकत की परस्तिश, जिसके पास ताकत है उसी का पूजा होता है। तो जो गवर्नमेंट है वही होता है, ये कोई नया बात नहीं है। हर दौर में होती रही ताकत की परस्तिश, हर दौर यजीदों का तरफदार रहा है। क्या ये करबला का एक मामला था जहां पर इमाम हुसैन जो है हक और सच के साथ थे, लेकिन चूंकि ताकत उसका पास था, लोग यजीद के पास में लोग जो है उसका जो है परस्तिश और उसके तरफ जा रहे थे। দেখুন যুগে যুগে কালে কালে বীরের কাছেই তো আত্মসমর্পণ করা হয়, সে কথাই ওনার শেরের মধ্যে বলা রয়েছে, শায়রির মধ্যে বলা রয়েছে। তবে যেটা বলার, এবারের ভোট 2026 বিধানসভা নির্বাচন শুধু একটা ভোট
এতে বিশাল বিশাল কিছু যায় আসে না যদি মনে করেন, তাহলে কিন্তু খুব ভুল করবেন। এবারের ভোট ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভোট। কি ধরনের ভবিষ্যৎ? আগামী প্রজন্ম, তাদের কর্ম নিশ্চয়তা, আপনার পরিবার, আপনার ব্যক্তিগত জীবন, আপনার স্বাস্থ্য, আপনার শিক্ষা, আপনার দৈনন্দিন জীবন কেমন হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি এই 2026-এর নির্বাচনে শুধুমাত্র একটা বোতাম টিপে। বোতামটা টিপে দিলে আপনার সিদ্ধান্ত পৌঁছে যাবে কমিশনের কাছে, নির্বাচন কমিশনের কাছে, সেই সঙ্গে রচিত হয়ে যাবে আপনার ভাগ্যটাও। তাই যাই সিদ্ধান্ত নিন না কেন ভেবেচিন্তে নেবেন। যদি মনে হয় যে শাসক দল আপনাদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে, আপনাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে যে ব্যবহার করছেন তা আপনাদের জন্য যথাযথ, তবে অবশ্যই শাসক দলকে ভোট দেবেন। আর যদি অন্য কিছু মনে হয় তাহলে সিদ্ধান্তটা নেবেন ভেবে চিনতে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ স্যার। উনি পেশায় শিক্ষক, এ কারণেই আমি ওনাকে স্যার বলেই সম্বোধন করছি। सर, बात ऐसे छिड़े है कि ग्राउंड रियलिटी जो है, आप जितने भी बड़े बात कर ले, संगठन मजबूत नहीं है, बूथ लेवल पर नहीं है। इलेक्शन तो फ्री फेयर बनाने का प्रयास जारी है, लेकिन आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी मालूम है, दूसरे सारे राज्य पे जब इलेक्शन होता है और हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो सामने आता है दुख देता है। हिंसा होता है इलेक्शन का आगे बाद में। इसको नज़र में रखते हुए आप कितना प्रिपेयर हैं कि कोई भी मसला अगर आए जो इलेक्शन के दिन या आगे या पीछे, जिनको आप संभाल पाएंगे? कितना प्रस्तुति है आप में, अपने आप में? देखिए, हम लोग निर्भीक होकर पॉलिटिक्स करते हैं और शुरू से वामफ्रंट के दौर में भी ऐसा दौर आया था। हाँ। कि जब लगता था कि मैंने कुछ हो जाएगा, और तृणमूल के दौर में तो जिसके साथ हम लोगों ने जोड़ पॉलिटिक्स किया है, 2018 का पंचायत इलेक्शन में बीडीओ ऑफिस के अंदर में हमें चेंबर के अंदर नॉमिनेशन, जो चेंबर हमारा था पंचायत का, वहाँ पर बैठ के नॉमिनेशन भर रहा था। सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे, वहाँ से मुझे उठा करके हमारा एक साथी को लाया गया और पूरा बीडीओ ऑफिस का प्रांगण को पार करके वो गेट के बाहर ला करके पिस्टल का बट से और लाठी डंडा जो था हमको मारा गया वहाँ पर, और हमारे साथी को भी मारा गया। इतने प्यारे माहौल थे जी, पूरा बीडीओ ऑफिस चारों तरफ से घिरा हुआ था। लेकिन देखिए, आज हम सोच रहे थे कि क्या हुआ, उस करके हुआ क्या। आज मैं विधानसभा का प्रार्थी बना। क्यों? कि जो पक्का इरादा रहता है ना, जब हम आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं, छोटा मोटा जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ते हैं अगर हैं, तो मन जो है बहुत अंदर से पक्का हो जाता है। और एक मैंने गाना है, सुनिए, एक वन मिनट सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा ये बात। थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टीवी भी देखता हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। बोलिए। तो एक फिल्म था जब वी मेट, तो उसमें एक गाना है, समझे, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो मंजिल कहाँ है, अब उस पर नजर ही खत्म हो गया। हम लोग इस रास्ता को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये आइडियोलॉजी कांग्रेस जो लेके चल रही है देश के लिए ना, उस रास्ता को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कीजिए सर, जहाँ तक हो सके एंजॉय कीजिए। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ बातें ऐसे मोड़ कुछ ऐसे आते हैं। मान लीजिए इलेक्शन के बाद, अभी तो फाइट कर रहे, तृणमूल से टक्कर है ना सर? जी है, बिल्कुल है। मान लिए ऐसा कोई सिचुएशन, हाँ, हम बीजेपी का बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी से आपका कोई कोalition हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता ना सर। इलेक्शन के बाद अगर ऐसा सिचुएशन आए कि तो टीएमसी के साथ हो सकता है, बीजेपी का ऐसा हो सकता नहीं, है। आपसे नहीं हो सकता सर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर? बात होगी आप तो पहले इकट्ठे रहे हैं। हाँ, रहे हैं तो, लेकिन फिर शेर सुनिए, थोड़ा सा मैंने ममता बनर्जी को हम लोग देखा, शेर शायरी लेकर दूसरा एक प्रोग्राम आपसे करेंगे सर। पूरा बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये भी अच्छा। एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हाँ।
जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो हम लोग जो ममता बनर्जी को जो देखा, बोले ना जॉर्ज पॉलिटिक्स, तो उनका चेहरा जो हम लोग बदलते देखा, 10-20 आदमी का चेहरा उनके अंदर है, बहुत अलग अलग कैरेक्टर सामने आया। करप्शन का अगर अभी तक तो बात नहीं उठा जी, करप्शन ही तो सबसे बड़ा एजेंडा है पश्चिम बंगाल में। आपको लगता है करप्शन सबसे बड़ा? बिल्कुल है। करप्शन को ढांकने के लिए सर, लोगों ने देखा टीवी पर पैसे लेते हुए, जी, एक को नहीं कई को देखे, सादा केस में देखा ना। फिर भी जब इलेक्शन हुआ सर, नजारा तो कुछ अलग बना। अब देखे ना, इसके बाद भी आप कहते हैं कि करप्शन बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है अब है, या पब्लिक यूजुअली मान लिए हैं कि ऐसा होता है? जी, इसलिए कि नॉन पॉलिटिकल जो है प्लेटफॉर्म से भी इसका, जब जनता जागती है ना, तब जो है एक चेंजेस आता है, रेवोल्यूशन आता है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा चेंजेस कभी नहीं आया है। अच्छा, तो अब पश्चिम बंगाल की जनता जो है अलग अलग संगठन बना करके इसके खिलाफ में आई है। 26,000 टीचर का नौकरी चला जाना ये कोई छोटी बात है। और उसका जो दूसरा जो पहलू है, तो जिन लोगों ने भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख ले करके पूरा नीचे से लेके चेन था पार्थो मुखर्जी तक, तो उस चेन का ऊपर में कोई इंक्वायरी नहीं होना। वहां पर आरजी कार में हमारा घर का बेटी इतना बड़ा वो चीज तो झंझोड़ के रख दिया हमारा जमीर को, हमारा कॉन्शियंस को। ये सब चीज, ये तो इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए ना सर? बिल्कुल होगा। आपको लगता है ये होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नारी सुरक्षा पश्चिम बंगाल जैसे जगह में देखिए, उसका कैपिटल में एक मेडिकल कॉलेज में और ऑन ड्यूटी, देखिए मेरा 36 घंटा ड्यूटी करते हुए एक लड़की के साथ सिर्फ रेप नहीं होता है, उसका मर्डर भी होता है और कोई पकड़ाता नहीं है। और फिर जिस तरह से शारदा का लाल डायरी और पेन ड्राइव गायब किया गया था, उसी तरह से यहाँ से भी सब जो है सबूत मिटाया गया। दूसरा दिन वहां पर काम हो रहा है। तभी तो आपसे पूछ रहे हैं सर, आपको लग रहा है कि करप्शन मुद्दा है? होगा, करप्शन मुद्दा है। सिस्टम में जो करप्शन पैदा किया गया है, राजीव कुमार को लेकर के टीएमसी जो अपना गंदगी साफ करने का कोशिश की है, उसको इम्यूनिटी देने के लिए आज राज्यसभा में भेजी है। वो सब चीज जनता के सामने में है। देखिए, हम बीच में थोड़ा सा सिर्फ जिक्र कर दूंगा, मेरा बेटा वो खुद एक डॉक्टर है। अच्छा, बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में ये उसका जो है कॉन्वोकेशन होने वाला है। अच्छा। तो हमको डेली बोल रहा है, चलिए आपके जैसा कोट पैंट बना देते हैं, मैंने आप जो पहने हुए हैं कॉन्वोकेशन में जाना है। मैं तो बोल बेटा छोड़ दो, अभी जो है जनता के दरबार में हम लोग हैं, देखा जाएगा इलेक्शन के बाद में। तो उन जो मेडिकल को जो छात्र थे, उनके अंदर में जो रोष आया है, वो जेएनजी का बात आप सुने तो कितने मुल्क के सरकार आज बदल गए, तो उनको वहां जरूर दबाया जा रहा है। हमने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा। तो मेडिकल के छात्रों के ऊपर में जो दबाव था उस टाइम में, अभी नहीं है। अब मैंने तो सिचुएशन अभी बदला हुआ है, थोड़ा बहुत बदला है जो सर, बदला है। उस वक्त में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता कि जेएनजी उस टाइम भी सरकार बदल सकता था, लेकिन चूंकि कैरियर एक मैटर होता है हर किसी के लिए, घर का प्रेशर, नॉट ओनली द कैरियर सर, घर का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था। नो सर, ये जो प्रेक्षापट है कि हमारे इंडिया का और हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज है, उनका सिचुएशन एक से हम अगर मान ले एक ही तरह का है, ऐसा नहीं है सर। हमारे यहाँ वैसा शायद नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता सर। मुझे इस इलेक्शन के बारे में बात करना है, आपका रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करना है। कीजिए। मुझे लगता है कि कहीं पे आप जितने भी बातें करें, टीएमसी एंड बीजेपी, इन दोनों के बीच में आप शायद सैंडविच बनने वाले हैं। तो कुछ सुना दूं तब मैं? सुनाइए। टीएमसी और जो बीजेपी को जो भ्रम है कि हम लोग जो है कुछ करने वाले हैं, हाँ। माने वही आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसकी ताकत है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। यही एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। और जो है दुनिया सुनने में बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। तैयारी है सच में है। नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। सुनिए, आपको जो है खाड़ी युद्ध से पहले अमेरिका आपको सुपर पावर नजर आ रहा था, इजराइल आपको सुपर पावर नजर आ रहा था, ईरान नजर आ रहा था कि उसके पास कुछ अलग इंतजाम है। वैसा ही बात है यूक्रेन और रशिया के बारे में भी वही वैसा ही बात है। लेकिन जब सर पे कफन बांध के उतरता आदमी ना,
जो चीज ईरान दिखा रहा है आप कि सच में अस्तित्व मान बदल रहे रहा हैं है। कि हाँ। सर पे कफन बांधने वाला मौका आ गया? बोला है कल अधीर चौधरी हमारे नेता जो है ना, हाँ। कि अगर रोकते माने रोकतत्व राजनीति चाहिए तो सेटाऊ होबे एबारे। तो हम लोग अधीर चौधरी हमारा यहाँ पर नेता हैं और हमारे जो है शुभंकर देखिए सरकार है। देखिए हाँ। अब अधीरता के बात ले आए। इससे पहले आप जो तीनों इलेक्शन लड़े हैं, जी अधीरदा प्रेसिडेंट थे आपका, जी। ठीक है ना? तब आप जॉइंटली लड़ाई में लड़ाई थे। लड़े जी जी। अभी भी अधीरदा का बात कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन जो बना है पार्टी का वो अकेले चलने का। नेशनल पार्टी है ना, वो हाई कमान से ठीक होता है ना, वो AICC का जो है मीटिंग में तय होता है। ठीक है, लेट मी नो ये बैटल आपके लिए कितना टफ है। लोग कह रहे हैं कि जितने सारे जगह पर लड़ाई होंगे ये दो पार्टी के बीच होंगे, ज्यादातर टीएमसी और बीजेपी के बीच। आप कहां आते हैं? हम पश्चिम बंगाल के बुनियाद में हैं और वो बुनियाद को जो है पॉजिटिविटी एक ऐसा चीज़ है जिस पॉलिटिक्स को हम लेके चल रहे हैं ना, हम लोग निकल करके ऐसा आएंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ पूरा देश देखेगा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में किस पोजीशन को पाने जा रहा है। किस पोजीशन को पाने जा रहे हैं सर? हम लोग गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं, नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर है गवर्नमेंट बनाने का फैक्टर में हम लोग जरूर रहेंगे। ये सेकंड चीज हो सकता है, देखा जाए पहला वाला क्या हो सकता है सर? कुछ भी हो सकता है, कुछ ये कुछ हालात ऊंची छलांग जब नहीं हो रहा है हाँ, सर? छलांग लगाना पड़ेगा। ऊंची छलांग हाँ, छलांग तो बिल्कुल। नहीं सर, ये बहुत ही ऊंची छलांग। आपको नहीं लगता कि ये बताने के लिए बता रहे हैं? ये क्या सच में ही मन में ऐसा है? नहीं, सच में मन है। लड़ाई तो फिर उसी वक्त शुरू होती है, सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरे को भी नहीं समझा पाएंगे। तो हम लोग पूरी तरह से जो है ऑप्टिमिस्टिक एकदम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। सर आपके वहाँ प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। जी, जी, देखिए जमीन धस का एक आपने, प्रॉब्लम हाँ है वहाँ जमीन पर। जमीन धस कोल का अंचल प्रॉब्लम है। देखिए लैंड लूजर का केस, अब आपको बताऊं मैं जो चीज सामने लाना समय चाह रहा हूं। बहुत कम है अब सर, बस थोड़ा बहुत- जल्दी हाँ, बता दीजिए। लैंड लूजर हमारे जो एनटीसी के वहां पर है और उखड़ा कोलियरी मजदूर यूनियन, पूरा कोल्ड बेल्ट में लैंड लूजर का केस इन्होंने ही डील किया है पूरा। ओके। और लोगों को नौकरी मिली, लैंड का पैसा मिला। तो हमारे जो यूनियन लीडर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं या जो अभी भी इन सर्विस हैं, हाँ। वो सब हमारे साथ है। अभी आपसे आने से पहले मैं खास कजड़ा में कोलोरी जो है वहाँ यूनियन का वहाँ एक मीटिंग, दो वहाँ के कर्मचारी रिटायर हुए थे, उनको सम्मानित करना था, वहाँ मुझे बुलाया गया। बहुत सारे कर्मचारी वहाँ मौजूद थे जिनके बीच में गया, पार्टी की भी बात की, उनका भी जो है रिसेप्शन किया हम लोगों ने। उसी तरह उखड़ा में हुआ। बढ़िया बात है। हाँ, उखड़ा कोलोरी मस्जिद। सर आगे बढ़िए, हमारे समय साथ कम है जी, सर जी, प्लीज। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा इश्यूज जो हैं मुझे सुनने को आया है शाम 6 बजे के बाद जी। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट ओके, इज इट ट्रू सर? हाँ, रानीगंज में। सो इसके हल क्या हो सकते हैं उसका सर? हल देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ हम लोग माने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये क्या बहुत हाँ। टफ मसला है? नहीं, वो शाम एक 6 बाईपास बजे बन का रहा है, बाईपास एक बन रहा है। सर, जिससे कब से बन रहा है हाँ, सर? वो तो फिर गति का बात है, और क्यों कैसा बन रहा है वो देखा जाएगा। रानीगंज तो पूरा झंझट में एकदम फंसा हुआ है, तो चलना मुश्किल हो जाता है। जो मेन रोड वहाँ का है, पंजाबी मोड़ से लेकर स्टेशन तक जाने में 2 घंटा लग जाएगा आपको, इतना झंझट है वहाँ पर। सर लड़कियों के लिए कुछ अलग से सोच है आपका? जी, लड़कियों के लिए सोच जरूर है। लड़कियों को इनकरेज करना पड़ेगा। जो अभी माहौल पश्चिम बंगाल में बना, हाँ। उससे लड़कियों के अंदर में एक भय का माहौल है, उसका हमारी पश्चिम ये तो बंगाल- गलत नहीं है सर, हाँ, होने हाँ, का तो जो पश्चिम situation- बंगाल हाँ। के में एजुकेशन मैं फेसबुक में रहता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं खास करके जब बंगालीज हमारी लड़कियों का मैंने बहुत सा होता है प्रोफाइल देखते हैं, तो मैंने बहुत हम ताज्जुब होता है, माने इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पर, इतने अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो मैंने एजुकेशन के बेस पर, किसी का सपोर्ट या दया दान पर नहीं है। तो अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो लड़कियां पीछे आएंगी। तो फिर वो तो पढ़ लिख करके वहां पर पहुंची है, डॉक्टर माने आपका जो है रिसर्च स्कॉलर है, बड़े बड़े कंपनीज में देखते बड़े बड़े पोस्ट पर हमारी लड़कियां हैं। नहीं देखिए सर, जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनका बात तो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं है मिडिल सर। क्लास। जी तो उनके बारे में सोचना जरूरी है। जी, बिल्कुल जरूरी है। और हम सोचते हैं कि आप इस बारे में सोचेंगे, लोगों का परेशानी जो है उन पे काम कीजिएगा। समय समाप्त होने चला, तो अगले 1 मिनट सर आप अपने वोटर के लिए रानीगंज विधानसभा केंद्र जो है
उनके जो वोटर हैं उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें जी। तो कह लीजिए, उसके बाद और थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, फिर ख़त्म करेंगे प्रोग्राम। आपके समय शुरू होता अब सर। मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपने देखा बीजेपी की सरकार को भी, भले देश की सरकार हो, सबके लिए है, और यहाँ पर टीएमसी की सरकार भी फिरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता की राजनीति से चश्मा को खोल करके हटिए। करप्शन जो टीएमसी ने जो फैला रखा है उसको तोड़ने के लिए, और जो पॉल्यूशन यहाँ पर फैल रहा है उसको साफ करके साफ फेजा में सांस लेने के लिए कांग्रेस का जो साफ साफ पॉलिटिक्स है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके लिए कांग्रेस यहाँ पर काम करेगी। एक अच्छा परिवेश बनाएगी। डर और भय का, आतंक का जो माहौल पैदा कर दिया गया है, पहले जो है यहाँ पर अच्छे सभ्य समाज के लोग पॉलिटिक्स में आगे आते हैं, और जो होती है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में माने थोड़ा गलत किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो पीछे रहा करते थे। आज गुंडा एलिमेंट्स जो है हर जगह समाज को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए बहुत शर्म की बात है। उत्तर बंगाल के एक प्रिंसिपल को जब हमने देखा था कि उनके कैंपस से टान के निकाला जा रहा था, उसी वक्त दिल दहल गया था। शुरू में जब टीएमसी की सरकार आई थी, ये माहौल बदलना पड़ेगा, करप्शन को दूर करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव माहौल बना करके नया पश्चिम बंगाल को बनाना है। जिस तरह से बीसी राय ने बनाया था पश्चिम बंगाल को, फिर से नया एक शुरुआत हम लोग करेंगे। इसके लिए कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, हर जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट दे करके कामयाब बनाइए। আপনারা শুনছিলেন রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী ফৈয়াজ আহমদ স্যারের বক্তব্য। তিনি তার ভোটারদের উদ্দেশ্যে তার পার্টির কথা, তার নিজের কথা ব্যক্ত করলেন। सर, 2 सवाल और बचे हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए। देखिए, माइनॉरिटीज वोट आपके वहाँ कितना मायने रखते हैं? एक्चुअल तो मैं माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स या ये पॉलिटिक्स को उतना रखता हूँ, लेकिन माइनॉरिटीज वोट तो तृणमूल matters कांग्रेस, करते हैं ना सर। तृणमूल कांग्रेस, हाँ, टीएमसी जो सरकार बना रही है, ममता बनर्जी खुद भी बोलती है वो अपने बात से, माइनॉरिटीज का समझ लिए कि 85-90% वोट टीएमसी को मिलता है बीजेपी से डरा करके। अब भी मिलेगा क्या? अब नहीं मिलेगा, इसलिए कि अब मैंने बताया। देखिए, मैं एक टीचर भी हूँ, मैंने BLA 1 का काम भी किया है, और मैं पंचायत का सदस्य रहा 2 बार। मेरी वाइफ सदस्य रही है। लोगों ने पहले भी मेरे ऊपर यकीन जताया है। एक टीचर हैं, तभी तो मैं शुरू से आपको सर सर करके बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत आप जो है इज्जत क्योंकि आपके प्रति बहुत सम्मान है मेरे, एज बिकॉज यू आर ए टीचर सर। अच्छी बात। हाँ, मैं जहाँ तक मुझे पता है, माइनॉरिटीज वोट एक बड़ा फैक्टर है, और ये 26 का जो विधानसभा निर्वाचन है, इसमें काफ़ी सारे सीटों का फैसला इसी वोट से होने वाला है। तो आपका वहाँ, आपका क्षेत्र में क्या ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज वोट इम्पैक्ट डालेगा? हाँ, फैक्टर डालेगा। इसलिए कि लोग जो है ना टीएमसी के जो ये अभी जो। सर, एक बात बताइए, हाँ। माइनॉरिटीज वोट आपके वहाँ पे टीएमसी को मिलेगा या आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा। टीएमसी को मिलता था, अब नहीं बीजेपी मिलेगा। से डरा करके। अच्छा। इसी मिथ को हम लोगों को तोड़ना है अच्छा, कि ये सब डर की पॉलिटिक्स से हटिए। हाँ। और ये जो बेकार भत्ता, ये लक्ष्मी भंडार माने चटनी पापड़ खा के जो दावत से वापस भेज दिया जाता है, इसको ख़त्म करिए। पूरा दावत जो है, बिरयानी समेत हर चीज़ जो है, स्टार्टर और मेन कोर्स वगैरह सब का पॉलिटिक्स कीजिए। यानी देश के लिए पॉलिटिक्स कीजिए, प्रदेश स्टेट के लिए पॉलिटिक्स कीजिए। फाइन सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। वेस्ट बंगाल या हमारे देश का बात कीजिए, ये यूथ कैपिटल है। ग्लोबल सिनारियो को ध्यान में रखते हुए, आई एम ए यूथ, हालांकि यूथ तो बीत चुका मेरा, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 80s 90s इनका बात छोड़िए, अभी मैं 20-25 साल का एक जवान हूँ। मुझे डिसीजन लेना है किनको वोट दूं, किनका ना दूं। मैं आपका विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मुझे समझा दीजिए मैं आपको वोट क्यों दूं? मुझे वोट दीजिए, सबसे पहले जो एजेंडा बोला पॉल्यूशन को दूर करने के लिए मुझे वोट दीजिए, ताकर के कांग्रेस के राज में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कारखाना बनाया जा रहा था, लास्ट कारखाना जो यहाँ बना है ना हमारा क्षेत्र में, एक DSTPS है और उसके बाद एयरपोर्ट बना है। 15 साल पहले टीएमसी गवर्नमेंट आने के बाद कुछ नहीं बना ना, बीजेपी वहाँ से कुछ लाई। तो कांग्रेस हमेशा जो है
जॉब क्रिएट करने का जो है माहिर है, मास्टर है। अच्छा, तो बेकारों को, लोग जो है बेकार, उसको नौकरी चाहिए, तो सिर्फ उसके लिए नहीं होता है, पूरा उसका एक फैमिली डिपेंड करता है, फिर एक इकोसिस्टम शुरू होता है, चेन। सर मैं डिसीजन ले रहा हूं आपका बात को मद्देनजर रखते हुए, तो टू द पॉइंट बता दीजिए सर, समय बहुत कम है, अब बताइए। मैं आपको वोट देना चाहता हूं, मन चाहता है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि बात समझ में आ नहीं रहा है। थोड़ा बहुत और कष्ट कीजिए, 2 पॉइंट बता दीजिए, टू द पॉइंट एकदम, मैं समझ लूं। जी, रोजगार के लिए वोट दीजिए। ओके। और अच्छा जो है माहौल, करप्शन दूर करने के लिए वोट दीजिए। हाँ। और शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए वोट दीजिए। हाँ। करप्शन को दूर करना है सबसे, बहुत बड़ा बीमारी है। ओके। ये माने एक होता जख्म, एक होता बीमारी। हाँ। तो ये उंड नहीं है, ये पूरा बीमारी है, कैंसर की तरह। इसको खत्म करना है जड़ से। प्रदूषण का क्या सर? प्रदूषण को भी खत्म करना है और करप्शन को भी खत्म करना है, दोनों को खत्म करना है। थैंक यू सर वेरी मच। बहुत मैं तो डिसीजन ले लूंगा, अभी आपका बात सुन लिए, और बाकी प्रत्याशी जो हैं उनके बाद भी सुन लेने का बाद मैं डिसीजन ले लूंगा कि किन को ভোট দেনা है। ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রদেশ কংগ্রেস প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ স্যারের সঙ্গে। তিনি পেশায় শিক্ষক, তাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য, আর ধন্যবাদ জানাই আপনাদের যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন। আশা করি আপনাদের বিধানসভা ক্ষেত্রের সমস্যা যেগুলো সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পেরেছি, আর যদি পেরে থাকি পরবর্তীতে আবারও অন্য কোনো কেন্দ্রের অন্য কোনো প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলবো। আপনারা চান কোন প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলি, কোন কোন প্রশ্নগুলো রাখি, যদি চান তাহলে এই অনুষ্ঠান টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হওয়ার পর যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যাবে সেখানে আপনাদের মতামত অবশ্যই জানান, তাতে করে আমরা ঋদ্ধ হব এবং আপনাদের প্রশ্নগুলোই সরাসরি প্রার্থীর কাছে রাখার চেষ্টা করব। আজ এ পর্যন্তই শেষ করছি বাংলার ভোট যুদ্ধ, আর আপনাদের কাছে অনুরোধ করব দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। নমস্কার। রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ, এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।